Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्रोष्ट श्री मधेश देवानंद से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस कौन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्रोश्च श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा राधिका रमन जी की श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री गौर निताई की सरशालिग्राम श्री जी की गिरिराज गोवर्धन की विंध्य तुलसी महारानी की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की बृहद भागवत अमृतपाद की भी सनातन गोस्वामी पाद की निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है. तो आज अंतिम सत्र पे हैं हम और आप सब भक्तों की कृपा से हम 2 पार्ट पूरे कर पाएंगे. तो कल चर्चा की कैसे जो मथुरा के ब्राह्मण थे उनको भगवान के दर्शन होते हैं कृष्ण के गोकुल में ही स्वरूप की कृपा से. और ये भी चर्चा हुई कितना आवश्यक है हमारी भक्ति में भक्तों की कृपा. भक्तों की कृपा से जो मथुरा के ब्राह्मण थे एकदम थ्रेशोल्ड पे थे, प्रेम के लक्षण पूरे प्रकट नहीं हो रहे थे. तो स्वरूप जी ने अपनी कृपा दी और उनको सारे के सारी वो एक्सटेसी प्राप्त हुई, भगवान के दर्शन हुए. और भगवान स्वरूप को बता रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको इतने लंबे समय के बाद देख पा रहा हूँ और मैं पूर्ण रूप से आपके वश में हूँ. आप बिल्कुल स्वच्छंद होके यहाँ पे आनंद लीजिए. उसके बाद परीक्षित महाराज अपनी माता को बता रहे हैं
कि भगवान के इन सुंदर मधुर वचनों को सुन के, भगवान के इतने सुंदर प्रेम व्यवहार को देखकर जन शर्मा जो थे, उनका नाम जन शर्मा भगवान ने दिया था, बिल्कुल कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और भगवान की तरफ देख भी नहीं पाए। तो कैसी उनकी स्थिति हो रही थी, सब इकट्ठे ही बोलेंगे प्लीज। बाष्प समृद्धा कंठम सन असफोहतलोचना परम तच्चरणाम्बोजे मूर्धनि धृतानुदत्तराम। His throat choking with sobs, his eyes burning with tears, all he could do was place his head on Krishna's lotus feet and cry profusely. कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे, देख पा रहे थे। उनके पास एक ही विकल्प रह गया कि अपने सर को भगवान के चरण कमलों में लगाएं। और जब उन्होंने सर अपने भगवान के चरण कमलों में लगाए तो भगवान के चरण बहुत ही कोमल थे और जोर जोर से रोने लगे। जब वो जोर जोर से रोने लगे तो भगवान ने क्या किया, वदान्य चूड़ा मनिरात्मनोधिकम किमापि अपश्यन् प्रतिदेयमाकुल स्वभूषणानि व्यप्रकृष्य गाततो विभूष्यते स्ताम विददे स्वरूपवत्। Lord Krishna, that crest jewel of munificent persons, was distressed because he could not find anything better than himself to offer as a gift. So he removed the ornaments from his own body and decorated the Brahman with them, making him look like Sarup. अब भगवान सोच रहे हैं कि मैं इसको क्या दूं, इस ब्राह्मण ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया तो मेरे पास देने को क्या है। वदान्य चूड़ामणि, वो तो जितने भी कृपालु हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, तो बोले क्या दे सकता हूँ, आत्मनो अधिकम, अपने से ज्यादा क्या दूं, अपने आप को देता हूँ, उससे ज्यादा और क्या है, किम अपने से ज्यादा क्या है, अपश्चन, जी देख नहीं पा रहे थे तो क्या दिया, क्या दूं। इसके लिए भगवान बड़े आकुल हो गए, व्यथित हो गए, विचलित हो गए। इस ब्राह्मण ने अपना पूरा जीवन दे दिया और मेरे पास इसको देने को कुछ है नहीं, अपने आप को भी दूं तो उससे ज्यादा क्या है। फिर क्या किया उन्होंने, स्वभूषणानि व्यप्रेक्ष्य, अपने भूषणों को उतार के, अपने शरीर से अपने आभूषणों को उतार के विभूषिता, उसको सजावट, उनको सजा दिया ब्राह्मण को, और उनको कैसे बना दिया, सारूपवाद, सारूप की तरह बना दिया। तो दो चीज़ें की, अपने आभूषण दे दिए और उस ब्राह्मण को बिल्कुल गोप बना दिया सारूप की तरह, है ना। भगवान ने कृपा किसी भी नहीं की थी, किसी को अपने ऐसे आभूषण उतार के नहीं दिए थे। और एक ब्राह्मण जो कि बिल्कुल कर्म कांड में फंसा हुआ था, भौतिक इच्छाओं से, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, और वो क्या बन गया, भगवान का ग्वाला, भगवान का संगी बन गया, गोप बन गया। कितनी बड़ी कृपा, तभी उनको बोला गया वदान्य चूड़ामणि। और इसके बाद जो भगवान ने फिर बंसरी बजाई और बंसी से विशेष ध्वनि निकली, सबको सिग्नल किया, सब गायों को कि आइए पानी पीजिए। और फिर एक बंशी की ध्वनि बजाई कि चलो अब सबने पानी पी लिया तो आगे चलते हैं। और उसके बाद भगवान अपने मित्रों के साथ और बलराम जी के साथ जल में क्रीड़ा करने लगे, है ना। परस्परम वारे अभिनिश्चिता सखेन कदाचित् उत्क्षेप्य जलानि भंजयेत् कदापि तेरेव विनोद कोविदो विलंबितो भंगभरम जहाशसा। Now and then Krishna would come near his friends who were splashing one another and drench them with waves. And sometimes the boys would come up to him, the most expert in all sports, and subject him to a torrents of waves. In all this the Lord took delight. तो ऐसे ही पानी में खेल रहे थे, सब जल छोड़ फेंक रहे थे और भगवान को बोला गया विनोद कोविदो, विनोद कोविदो, है ना, कोविद विनोद कोविद, मोस्ट एक्सपर्ट इन स्पोर्ट्स, है ना। और वो पीछे से आते थे और भगवान के ऊपर जल फेंक रहे, भगवान को भी आनंद रहा है, भगवान भी ऐसे जल फेंक रहे हैं। और इस प्रकार से यमुना के पानी का पूरा उपयोग करके उसमें तरह तरह के सुंदर वो संगीत निकाल रहे थे। तो कभी भगवान करण के साथ बहते थे, कभी करण के अगेंस्ट, और तरह तरह के यमुना में वो खेल खेल रहे थे। और कई बार भगवान वहाँ पे यमुना में बहुत कमल के फूल होते थे, उसके अंदर अपने आप को भी कुछ छुपा लेते थे, इतने कमल के फूल होते थे कि दिखाई नहीं देते थे, पीछे छुपा लेते थे। तो सारे ग्वाल बड़े घबरा जाते थे कहाँ चले गए भगवान। और फिर भगवान हंसते हुए फिर से प्रकट होते थे, तो सब ग्वालों को बहुत आनंद आता था। फिर क्या करते थे भगवान, मृणांजलेना मनोरमेना विरच्य हारा
He decorated his friends with charming garlands made from various water flowers, strung together with fibers of lotus stems. Then he and his friends came out of the water, and in the same way they decorated him. तो भगवान को जब ढूंढ लेते थे वो कि सब कमल के फूल के पीछे छिपे हुए हैं, तो भगवान के आसपास सारे ग्वाले आते थे, तो उन सबको भगवान फूलों की माला डाल देते थे। वही जो फूल थे उनकी एक माला बना के उनको डाल देते थे, और ग्वाल वाली माला बना के भगवान को डाल देते थे। और फिर भगवान लंच करने का समय होता था तो यमुना के तट पे सब लंच करके बैठते थे, और बलराम जी को मध्य में बना के और सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स में बैठ जाते थे। ओके, और फिर भगवान स्वयं सबके पास जाते थे, सबको सर्व करते थे जो जो लेके आए हैं, और उन सबके सामने खड़े होके भगवान उनको एक तो जो घर से लेके आते थे सबको सर्व करते थे, फिर वृंदावन से भी काफ़ी फल इकट्ठे करते थे, तरह तरह के फल, उसमें रसाल होते थे और पाम फ्रूट्स थे, बिल्व फल थे, बादरस थे, आंवला थे, नारियल था, जैक फ्रूट, अंगूर, केले, ऑरेंज, संतरे, और इस सारे के सारे फल वृंदावन की खूबी थी कि हर मौसम का फल एक साथ वृंदावन में प्रकट होता था। आज की तरह नहीं है कि कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, नेचुरली वृंदावन में एक सीजन में सारे फल प्रकट हो जाते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान उन सबको दे रहे हैं, खिला रहे हैं, और भगवान को कैसा लग रहा है? हर्षायते शमादाय प्रत्येकम किचिदुच्यत तिष्ठम तत् समीपे असौ भुंक्ते तानपि भोजयेत। तो जो भगवान अच्युत हैं वो सब हर एक ग्वाल बाल के सामने जाते थे। पढ़िए प्लीज। The infallible Lord Krishna stood in front of each boy, one after another, and took a morsel from each plate and consumed it, and fed the boy as well. In this way he pleased them all. सबके आगे जाके भगवान पहले तो सर्व कर रहे हैं, फिर सबकी प्लेट से उठाकर खा रहे हैं, मानो, और फिर उनको खिला रहे हैं, मानो। और इस प्रकार से, और जो ग्वाल भी क्या करते थे, उनके भगवान के जो गोप थे वो भी भगवान को खिलाने से पहले क्या करते थे? पहले खुद खा के देखते थे, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइटम है वो भगवान को खिलाते थे। और भगवान भी जब उनको खिलाते थे तो भगवान ऐसा चेहरा बनाते थे, आह क्या बात है, इससे बढ़िया कभी खाया ही नहीं है। फिर दूसरे का वाह वाह ये सबसे उत्तम है, फिर बोला इन्होंने ये सबसे उत्तम है, तो इसलिए बड़ा आनंद आता था सबको। और फिर बाद में तरह तरह के उनके पास ड्रिंक्स थे, वो ड्रिंक्स भी पीते थे। और फिर भगवान ने जब पूरा भोजन हो गया तो सुपारी लेकर आए थे, सब कपूर के साथ सुपारी मिला के भगवान को दिया, और सब ग्वाल वालों ने भी कपूर सुपारी खाई। और फिर अलग अलग के फूल वहाँ पे थे, उनके लिए भगवान ने सुंदर सुंदर मालाएं बनाई, उनको माला डाली और चंदन का लेप किया। और इस प्रकार से भगवान आनंद उठा रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। पढ़िए। नानानुकारा मुखपन्विका नर्म भंगी शतेर्हासित रोदन केलि दक्ष्यान निर्जित्यताना सुखया सुहृदोमिदव्यम विश्रम केलिम अतनोद विविधम सरामा। Krishna enjoyed pleasing his friends and in various ways, along with Balaram, indulged in his pastime of relaxing. Though Krishna's friends were very competent in the sport of keeping themselves from laughing, Krishna defeated them by imitating various characters, distorting his face and cutting hundreds of jokes. सब एक्सपर्ट थे मजाक उड़ाने में करने में, लेकिन कृष्ण सबको हरा देते थे। ऐसी ऐसी नकल उतारते थे, मिमिक्री करते थे, ऐसे ऐसे जोक्स मारते थे कि सबको खूब हंसाते थे ना। इस तरह से वो आनंद दे रहे हैं। और इसके बाद फिर भगवान एक सिग्नल करते थे बंसी बजा के, सारे के सारे गायें फिर खड़ी हो जाती थी, और फिर वो गोवर्धन में जाते थे। और उसके बाद फिर भगवान गोवर्धन से वापस शाम को घर वापस आते थे, और जन शर्मा को स्वरूप के हाथों में सौंपकर भगवान अपने गांव में वापस आ जाते हैं। तो ये पूरा कथा यहीं पे समाप्त होती है, स्वरूप की भी और जन शर्मा की भी। जन शर्मा को भी स्वरूप की तरह भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, जन शर्मा भी भगवान के स्वरूप की तरह उन्हें भगवान की लीलाओं में भाग लिया, और वो भी एक ग्वाल बाल बन के। अब परीक्षित महाराज बताते हैं माता उत्तरा को कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, और गोपीनाथ जी के चरणों पे ध्यान लगाइए, और जो कुछ भी आपने सुना उस पर मनन कीजिए,
और आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। क्या क्वेश्चन थे उत्तरा माता के? कहानी सुन रहे हैं, क्वेश्चन क्या था? हैं? हाँ, फर्स्ट पार्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन था? माइक पे बोलिए। कौन से भक्त को सबसे ज़्यादा भगवान की कृपा प्राप्त है? फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन ये था कि आपको जो अमृत प्राप्त हुआ है वो अमृत मुझसे भी आप शेयर कीजिए ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। और जब वो सुन लिया था अमृत कि भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा भगवान के व्रजवासियों को प्राप्त है, गोपियों को प्राप्त है, फिर सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन था कि निश्चित रूप से जो ब्रजवासी हैं ये वैकुंठ वासियों से ऊपर हैं, इनके लिए कुछ अलग ही स्थान होगा। मुझे को समझ में आ रहा है वो स्थान है कि नहीं है, कहाँ है वो बताओ। तो बोले मैंने सब बता दिया, गोलोक की महिमा बता दी, ब्रजवासियों की महिमा बना दी, अब आप करिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने प्रयासों से, हे मेरी प्रिय माता, आप उस गोलोक धाम में जाने का प्रयास कीजिए जो कि आनंद का सागर है और उसकी वो परिकाष्ठा है, उससे ऊंचा कहीं आनंद नहीं है। और वहाँ पे जाके आपको सब भगवान के साथ प्रेम में आदान प्रदान करने को मिलेगा। तो आपको अपने प्रयास करने पड़ेंगे। और इसके कमेंट्री में लिखा जा रहा है कि भक्त को, हालांकि गोलोक में हमें जो एंट्री है भगवान की कृपा से मिलेगी, गुरु की कृपा से प्राप्त होगी, लेकिन साधक को अपने प्रयास बड़े उत्साह और निश्चय से करने पड़ेंगे। बोले आप अपना प्रयास कीजिए और गोलोक धाम में जाना आपका लक्ष्य है, उसके लिए खूब प्रयास कीजिए बड़े उत्साह और निश्चय के साथ, और भगवान की कृपा को आकर्षित करके वहां पे जाइए, बस वहां पहुंच जाइए। अब इतनी गोलोक की महिमा सुनी और जिस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं हमारे, तो ये मन में भाव आता है कि बस चले जाओ, गोकुल और गोलोक में फर्क नहीं है, बस गोकुल में तो जाना यहाँ से मुश्किल से 150 किलोमीटर भी नहीं है, वहां पहुंच जाओ एक बारी और उस धाम की महिमा से हमें सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो परीक्षित महाराज जी बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, भाई इस गलत फहमी में मत रहना। पढ़िए प्लीज। भूमे चास्मिन पदी मथुरा मंडे, पढ़िए कैसे पढ़ेंगे? सिद्धे यस्तु सकला समय यस्य कस्यापि नैव किन्ते तस्य प्रिय जना कृपा पूरता कस्य चित्यसु तद्दो माते शनु पद क्रियाणाम। पढ़िए प्लीज। Not that just anyone at any time can achieve those perfection at once just by traveling to the district of Mathura on earth. Rather, only a rare person achieve them when he has obtained full mercy from the Lord's dear devotees. O Mother, please therefore gather dust from the feet of devotees who have exclusive love for the lotus feet of the Lord. हाँ, तो इतना चीप नहीं है। पहुंच गए जी ब्रजभूमि में, फटाफट वहां पहुंचते ही परफेक्शन मिल गई। बहुत गलत फहमी है लोगों को, है ना, खासकर दिल्ली वालों को बहुत गलत फहमी है। पास में ही है, फटाफट वहां पहुंच जाते हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत दुर्लभ चीज है, इतनी सस्ती नहीं है कि वहां पहुंचते ही सब कुछ मिल जाएगा। ये सुविधा थी तो परफट बहुत सुंदर है, इसको मैंने पूरा परफट ही आपके लिए रखा है, इसको पढ़िए प्लीज। Mother Uttara might propose that according to what she has heard from Parikshit, she could achieve perfection simply by traveling to the nearby Vrajbhumi of the Mathura district, which is non-different from Golok in the spiritual sky. But Parikshit answers that to realize the boundless variety of loving exchanges with Sri Goloknath is not so easy. Only during the short time of Krishna's avatar, when he makes himself visible on earth at the end of but one Dwapar Yuga in each day of Brahma, can anyone who simply visits Vraj become perfect? At that time, Krishna descends to earth to bestow causeless good fortune to all the jivas. ये जो सौभाग्य था केवल उसी द्वापर युग में उपलब्ध था जब भगवान यहाँ पर थे। उस समय कोई भी व्रज में प्रवेश कर जाता उसका उद्धार हो जाता, लेकिन अब वो बात नहीं है। ये केवल लिमिटेड समय के लिए एक ही द्वापर युग में उपलब्ध थे, जब भगवान यहाँ प्रकट हुए थे
तब केवल ब्रज में जाने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। आगे पढ़िए। At other times, one can achieve the full realization of Krishna consciousness only by receiving a flood of mercy from a dear devotee of Sri Gopinath. This indeed was how the Brahman Jan Sharma became fortunate by the mercy of Sarup. Parikshit therefore begs his mother that rather than associate with persons interested in liberation or anything else, she search out the dust from the feet of the Vaishnavas who want only love for Krishna. With great care, she should collect that dust and place it on her head. Then her visit to Vrajbhumi will result in complete perfection. ना, तो ये बात समझनी है। और बड़े बड़े भक्त से भ्रमित हो जाते हैं और एक नया फैशन बना हुआ है कि व्रज में जाके दीक्षित भक्त भी अपने गुरु को त्याग के वहाँ पे किसी नए वैष्णव को ढूंढते हैं जो प्रेमी भक्त हो, रसिक भक्त हो, उनके चरणों की धूल प्राप्त करेंगे। जितने भी वैष्णव हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं हमारे गुरु, जो कि प्रमाणिक संप्रदाय से हैं। तो उनके चरणों की रज लेने का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। तो भक्ति में इस प्रकार के शॉर्टकट, इस तरह की चीटिंग प्रोपेंसिटीज नहीं चलती। भगवान को हम चीट नहीं कर सकते, गुरु परंपरा को चीट नहीं कर सकते कि वहाँ जाएं जी कोई रसिक कथा कर रहा है बस ये हमें मिल गया, ये केवल प्रेम चाहते हैं, बाकी जो हमारे शहर वाले गुरु हैं वो तो कुछ और चाहते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि वैष्णव की कृपा से ही, किसी वैष्णव के प्रति अपराध करके हम किसी और की कृपा ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बड़ा अपराध है प्रमाणिक गुरु को त्यागना या उनके आगे का पालन ना करना और फिर नया कुछ कर लेना। कमी गुरु में नहीं है, कमी हमारे प्रयासों में है। हमें साक्षात कृष्ण भी यहाँ दीक्षा देने हमारी यही हालत रहेगी अगर हमने मेहनत नहीं करनी तो इसलिए इस बात को समझना है, व्रजभूमि में जाके प्रेम प्राप्त करना इतना चीप नहीं है जितना कि बनाया जा रहा है। इट्स नॉट सो चीप। यहाँ परीक्षित महाराज उस समय माता उत्तरा को वार्निंग दे रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि वहाँ पहुँचते ही मिल जाएगा प्रेम। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, भक्तों को प्रसन्न करना पड़ेगा, उनके चरणों की धूल से अपना अभिषेक करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रेम प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने क्लियर किया और उसके बाद परीक्षित महाराज ने बोला कि मैंने जो बताना था आपको बता दिया, अब मैं आपको श्रुति और स्मृति के आधार पे बताऊंगा। आपको शायद ध्यान होगा जब परीक्षित महाराज ने कथा प्रारंभ की थी तो उससे पहले उन्होंने माता उत्तरा को बोला था कि मैं चाहूँ तो आपके प्रश्न का उत्तर शास्त्रों के आधार पर दे सकता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको कुछ कथा सुनाऊंगा। तो कथा सुना दी। अब इन दो कथाओं को पूरा सपोर्ट करेंगे वो श्रुति और स्मृति के आधार पर, अलग अलग शास्त्रों को कोट करेंगे। तो वो 5 श्लोक कोट करते हैं हरिवंश पुराण से, 1 श्लोक कोट करते हैं स्कंद पुराण से, 3 श्लोक कोट करते हैं ब्रह्म संहिता से और कोई 59 श्लोक कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से। और इन सभी श्लोकों पे सनातन गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं दी। उन सब श्लोकों को पढ़ेंगे, उस पर विचार भी करेंगे, बहुत दिन लग जाएंगे। एक एक श्लोक पे एक एक दिन किया जा सकता है, बहुत सुंदर टीकाएं भी हैं। तो कुछ मुख्य मुख्य हमने श्लोक लिए हैं, सीमित समय है, उसमें से कुछ कुछ शिक्षाएं, कुछ कुछ और जिसमें गोलोक की महिमा, गोलोक वासियों की महिमा सब इसमें स्थापित की जाती है। तो उसके बाद शुरू करते हैं, बताते हैं हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है और जिसको बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि चाहते हैं वो शिव जी और उनकी पत्नी उमा जी का भी साथी स्थान है। तो यहाँ पे स्वर्ग बोला जा रहा है ऊपर के 5 लोकों को, 5 लोकों तक को, 7 लोक तक को स्वर्ग बोला जाता है। और जो ब्रह्मलोक है उसको बोला जाता है वैकुंठ। वैकुंठ को ब्रह्मलोक भी बोला जाता है, ब्रह्म का लोक, वो वैकुंठ को भी बोला जाता है। और बोले ये अपने आप में असीमित हैं। एक तो भगवान की ब्रह्म ज्योति असीमित है, उसके बाद वैकुंठ लोक असीमित है, उसके ऊपर है गोलोक धाम, वो भी असीमित है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से इसकी महिमा को नहीं समझ सकता। तो इस प्रकार से वर्णन आता है हरिवंश पुराण में। और ये हरिवंश आपको मालूम क्या है? हरिवंश पुराण जब जन्मजय ने पहली महाभारत किससे सुनी थी? अभी किससे सुन रहे हैं? जैमिनी ऋषि से। पहले किससे सुनी थी महाभारत? वैशंपायन मुनि से।
तो वैशंपायन मुनि से जब महाभारत सुनी थी तो उसके बाद वो बोलता कुछ और सुनाओ, तो उसका एक अपेंडिक्स था। वो अपेंडिक्स क्या था? हरिवंश। और फिर भी वो संतुष्ट नहीं, फिर उन्होंने जैमिनी ऋषि जी से दोबारा से महाभारत सुनी। तो उन्होंने बोला, जैमिनी ऋषि जी को बताया कि ये श्लोक मैंने पहले भी सुने थे, जो आपने हरिवंश वाले सुनाए, ये मैंने भी पहले भी सुने थे वैशंपायन मुनि से, लेकिन इतने स्पष्ट नहीं हुए थे। अब आपने बताया तो और क्लैरिटी आई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ये हमारी कथा समाप्त होने वाली है, तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो कुछ रसायन दीजिए। जैसे एकदम बीमार व्यक्ति है, प्राण छोड़ने के कगार में है, उसको लाइफ सेविंग ड्रग देते हैं, ऐसे कुछ रसायन दीजिए मुझे। तो बोले ठीक है, रसायन चाहिए तो ये लीजिए रसायन। तो इसका कई अनुवाद पढ़ लेंगे, समय कम है, प्लीज ट्रांसलेशन पढ़िए। Sri Jaimini said, "My dear child, in the joy of having spoken about the glories of Golok, your father recited several verses that complement these two wonderful histories. Those charming verses express various sweet ecstasies and bear the essential purport of all the Shrutis and Smritis. By chanting them, I am able to dispel the sorrow I feel in the absence of your respected father, and thus I travel happily in this world. Now I shall recite those verses to you." देखिए जैमिनी ऋषि जी हमें बता रहे हैं कि श्लोकों को याद करना कितना महत्वपूर्ण है। बोले आपके पिता जब चले गए, परीक्षित महाराज उत्तरा को कथा सुना के, मैं ही बहुत दुखी हो गया था। नहीं, मैंने क्या किया, ये श्लोक याद किया, और उन श्लोकों का मैं उच्चारण करता हूँ और बड़े आनंद में रहता हूँ। तो ये श्लोक उन्होंने सुनाना शुरू किए। वो श्लोक क्या हैं सब जानते हैं। आनंद चिन्मय रसपति भाविताभिस्ताभि एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। I worship Govind, the primeval God. He resides in everyone's heart as the super soul and simultaneously in his own realm, Goloka, with Radha, who resembles his own spiritual figure and embodies the ecstatic potencies, Haladini. The companion are her confidants, extension of her bodily form, who are permeated with ever blissful spiritual rasa. So आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभि एव निज रूप तया कलाभि। निज रूप तया कलाभि मतलब कि निज रूप, भगवान के रूप के समान ही उनकी कलाएं हैं, उनके विस्तार हैं। तो ये सारे उनके विस्तार हैं, जैसे लिखा है राधा रानी के शरीर से सारी गोपियों का विस्तार हुआ है। और क्या है, आनंद चिन्मय रस, सब आनंद और चिन्मय रस से वो अप्लावित हैं। और सब क्या करें, भगवान गोलोक एवं स्थिति अखिलात्म भूतो, इस संसार के हर एक जीव के हृदय में भी हैं और गोलोक में भी स्थित हैं। और इसलिए भगवान गोलोक में हैं और गोलोक की स्थिति बहुत ऊंची है। तो यहाँ लिखा जा रहा है, ब्रह्मा जी क्या शब्द यूज कर रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम, उस गोविंद को, बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गोलोक नाम निज धाम नितले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचिया विहिताशयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। Lowest of all is the mundane world, Devi Dham. Next above it is the abode of Mahesh, Mahesh Dham. Above Mahesh Dham is the abode of Hari, Hari Dham. And above them all is Krishna's own realm named Golok. I adore the primeval Lord Govinda, who has alerted to the rulers of those graded realms their respective authorities. तो बताया गया रिस्पेक्टिव देवी धाम है, महेश धाम है, फिर हरि धाम है और फिर गोलोक है ना। भौतिक जगत है, भगवान शिव का धाम है, फिर वैकुंठ है, उसके बाद फिर गोलोक धाम है। तो ये सभी भगवान के विस्तार हैं, नारायण भगवान के विस्तार हैं, शिव भगवान के विस्तार हैं, दुर्गा जी भगवान के विस्तार हैं। तो उन विस्तारों में इतनी विशेषता है कि इतने विशेष विशेष जगत उत्पन्न कर दी है। ये भौतिक जगत ही हमें समझ में नहीं आता, इस भौतिक जगत के क्रिएशन से हमें समझ में नहीं आती, एक छोटा सा वायरस ही हमें समझ में नहीं आता। कितनी अद्भुत क्रिएशन, आप देखिए कितनी अद्भुत क्रिएशन है। तो भगवान के विस्तार इतने अद्भुत हैं, उनकी क्रिएशन इतनी अद्भुत है, तो भगवान का धाम और भगवान कितने अद्भुत होंगे, इससे कंपेयर कर सकते हैं।
कितने कितने विचित्र इस संसार में बातें हैं। प्रभुपाद बताते हैं ना, गाय घास खाती है, दूध देती है, क्या विचित्र बात है ना। बाल हम काटते हैं, फिर से उग जाते हैं। इस शरीर में कैसे भोजन पच रहा है किसी को पता नहीं, क्या हो रहा है किसी को नहीं। इतना विचित्र ये सब कुछ है, और पूरा ब्रह्मांड कितना विचित्र है। अभी 5वें स्कंद में पढ़ेंगे क्या क्या ब्रह्मांड में होता है, कुछ पता ही नहीं, कॉस्मोलॉजी नहीं समझ में नहीं आ रही, तो क्या गोलोक समझ में आएगा, कितना ऊंचा है। भगवान के विस्तारों में इतनी विशेषता है, तो भगवान में कितनी विशेषता होगी। श्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरो द्रुमा भूमि चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि सरति सुरभि अभ्यश्च सुमहान् निषादाख्यो व्रजति न हि यत्रापि समय भजे श्वेत दीपम तमम इहम गोलकितिम यम विन्दन्तस्ते संताक्षिति विरलचरा कतिपय इति। I worship the transcendental realm known as Shvetadvip, whereas loving consorts, the Lakshmis, in their unalloyed spiritual essence, practice the amorous service of the Supreme Lord Krishna, their only lover, where every tree fulfills all desires, where the soil is made of purple gems and the water is nectar, and every word is a song, every step a dance, and the flute is the favorite attendant. Effulgence in that realm is full of transcendental bliss, and the supreme spiritual entities are all to be tasted and enjoyed. There, numberless cows always give transcendental oceans of milk and transcendental time ever present, without past or future. Eternally exists, not subject to passing away even for the space of half a moment. That realm is known as Goloka, only to a very few self-realized souls in this world. ये फेमस श्लोक है, हम कई बार इसको गाते हैं। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है श्रिया कांता कांता, है ना, जो लक्ष्मी जी हैं उनके जो प्रेमी हैं, तो भगवान के धाम में गोपियों को लक्ष्मी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भगवान के धाम में लक्ष्मी जी कैसे। भगवान के धाम में जो गोपियाँ हैं जिनके भगवान के साथ रास करती हैं उनको लक्ष्मी जी कहा जाता है। वो महालक्ष्मी से भी ऊपर है, उनको लक्ष्मी कहा जाता है। और फिर है चिदानंदम पर ज्योति परम ना, तो ज्योति क्या है, तो ज्योति बताया जा रहा है ये भगवान की देह की कांति भी कही जा सकती है, जो कि ऑल प्रिवेडिंग है, या फिर भगवान का ये प्रेम है वो भी ज्योति है, या फिर बताया जा रहा है भगवान के अधरों का अमृत आस्वाद्यम अपि, जिसका वो आस्वादन करती हैं गोपियाँ, ये ज्योति है, परम ज्योति, चिदानंद है जो कि, है ना। और फिर बताया जा रहा है कि इसको भी श्वेत द्वीप बोला गया है ना। तो श्वेत द्वीप तो वो है जहाँ पे क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं क्षीर सागर में, उसको भी श्वेत द्वीप कहते हैं। तो श्वेत द्वीप एक बहुत जेनरिक टर्म है। श्वेत का मतलब होता है प्योर, है ना, शुद्ध, वाइट, बिल्कुल प्योर है वो। और ये श्वेत द्वीप का मतलब है एक एक्सक्लूसिव स्थान ना, ऐसा स्थान जहाँ पे केवल परमहंस लोग ही शरण प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं द्वीप। ओके, तो ये श्वेत है, ये सफ़ेद वाइट क्यों है, क्योंकि गायों के मिल्क, गायों के दूध से बना हुआ है, एक समुद्र के समान है श्वेत, दूध का सागर है। वो दूध कहाँ से आया, गायों से, सुरभि गायों से। और द्वीप है उसमें, गायों के दूध से घिरा हुआ एक द्वीप है। जैसे इस संसार में जो गोकुल है मथुरा, वो एक राउंड शेप में है और उसके चारों तरफ यमुना है, इसको एनसर्कल करते हुए। और इसी ढंग से भगवान का जो गोकुल है, वो जो मथुरा है, वहाँ पे गोकुल में मथुरा, वो एक दूध के सागर के समान है। और सारा दूध कहाँ है, सुरभि गायों से। और उसके बीच में वृंदावन एक द्वीप की तरह है। इस प्रकार से ऐसा है श्वेत द्वीप, ऐसे बोला गया है। और फिर भगवान वहाँ पे वंशी जो है वो उनके अटेंडेंट है। और कथा गानम नाट्यम गमने वंशी प्रिय सखी, ये सारे अच्छे ढंग से बताया गया है। और उसके बाद भागवतम के कई श्लोकों से फिर वृंदावन का वर्णन होता है। और उससे पीछे एक श्लोक स्कंद पुराण से भी है, जिसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से जब इंद्र उनकी पूजा करने आए थे, तो यहाँ ये मालूम चलता है
कि एक जो गोलोक है वो इस भौतिक जगत में भी है, एक गोलोक भौतिक जगत में भी है। क्योंकि जब इंद्र गोवर्धन पूजा के बाद भगवान से क्षमा मांगने आए थे तो सुरभि गाय को लेके आए थे। तो ये सुरभि गाय जो है भगवान के धाम से नहीं आई थी, इस भौतिक जगत में गोलोक है। ये भौतिक जगत में गोलोक कहाँ पे है? सत्य लोक में है। जो गाय भगवान के साथ मथुरा में लीला में भाग नहीं लेती गोकुल में, वो जो कुछ सौभाग्यशाली गायें होती हैं देवताओं की और ब्रह्मा जी की, वो सत्य लोक में रहती हैं, उसको गोलोक कहते हैं। और जब इंद्र प्रार्थना करते आते हैं भगवान से तो उस सुरभि को लेकर आते हैं। तो उस भौतिक जगत में जो गोलक में जो सुरभि है वो इस संसार की सभी गायों की माता है, तो उसको लेके आते हैं, तभी भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सी विचित्र बातें हैं। तो उसके बाद कोई 59 वर्सेस हैं जिसमें परीक्षित महाराज बताते हैं उत्तरा माता को अलग अलग ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, मथुरा की स्त्रियों की प्रार्थनाएं, गोपियों के द्वारा गाया हुआ वेणु गीत, उद्धव जी की प्रार्थनाएं, जहाँ पे गोपियों का वर्णन हो रहा है, भगवान के ग्वाल बालों का वर्णन हो रहा है, वृंदावन के वनों का वर्णन हो रहा है, ब्रज भूमि का वर्णन हो रहा है, ब्रज के पशुओं का वर्णन है, गुणगान है, ग्वाल बालों का गुणगान है, बहुत विस्तार में एक एक जीव का, एक वहाँ पे एक एक भक्त का कैटेगरी करके शांत रस में दास्य, साख्य, वात्सल्य, नंद और यशोदा इत्यादि का, और फिर भगवान की गोपियों का गुणगान है। तो उसमें कुछ ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से ये है, अहो अति धान्य व्रज गौरमान्या स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा याशामे बोवात्सरत्मात्मन जनामना यत्रिप्यते अद्यपि यत्नालम अध्वरा। O Almighty Lord, how greatly fortunate are the cows and the ladies of Vrindavan. Taking the form of their calves and children, you have happily drunk to your full satisfaction the nectar of their breast milk. All the Vedic sacrifices performed from time immemorial up to the present day have not given you as much satisfaction. तो गुणगान कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी गायों का और भगवान की गोपियों का, कि उन्होंने भगवान ने उनका दूध का पान किया और उनके दूध का पान करके भगवान को इतनी संतुष्टि मिली जितना कि उनको वैदिक यज्ञों से नहीं मिले। इतनी संतुष्टि, कितनी धन्य हैं ये गोपियां और ये गायें जिनका भगवान ने दुग्ध पान किया, स्तन पान किया। और ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान के बाल गोपाल के रूप में वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके बहुत ही कोमल कोमल आपके चरण हैं। उन्होंने भगवान के गोपीनाथ रूप का वर्णन नहीं किया क्योंकि अभी उनका हृदय में गोपियों की महिमा प्रकाशित नहीं हुई थी। और ब्रह्मा जी ने, हम देखते हैं भागवतम के दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से भक्ति पाने के लिए, और ब्रह्मा जी बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान ने सारा वैदिक ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया था। लेकिन व्रज में जाके उनको मालूम चला कि असली भक्ति की महिमा क्या है। व्रज में जाके मालूम चला कि भक्त कैसे होते हैं, और वहां जाके उनको मालूम चला अगर भगवान का असली गुणगान करना है तो भगवान के भक्तों की और भगवान की भक्ति का गुणगान करके ही भगवान का गुणगान हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने खूब व्रजवासियों का गुणगान किया और उनकी भक्ति का गुणगान किया। तो व्रजवासियों का गुणगान कर रहे हैं, क्या सौभाग्य है कि परम सत्य हैं, वो उनके स्तनपान कर रहे हैं और उनको इतनी संतुष्टि बड़े बड़े यज्ञों से नहीं मिली। और ब्रह्मा जी ने भगवान की रासलीला के बारे में वर्णन नहीं किया। सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के पहले पुत्र हैं, अपने पिताजी की रासलीला का वर्णन करते थोड़ा उनको संकोच हो रहा था, तो बोले उनके बाल गोपाल का रूप ही ठीक है और इतना ही मुझे रियलाइजेशन है, इतना ही मैं बोलूँगा, है ना। तो ये सब बात नहीं की उसके बाद। और उसके बाद बोले नंद महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं जिनके आंगन में खेले, और फिर इस श्लोक का वर्णन करते। ये सब भागवतम के 14वें अध्याय से ये प्रार्थनाएं हैं। येषां तु भाग्य महिमाच्युतावदास्ताम् एकादशे भये वयं वत् भूरि भागा एतादृक्षा चक्षुरसकृत् पिबामः सर्वोदयांग्रे उदजमाधव अमृता सतम ते। Yet, even though the extent of the good fortune of these residents of Vrindavan is inconceivable, we 11 presiding deities of the various senses, headed by Lord Shiva, are also most fortunate, because the senses of these devotees of Vrindavan
are the cups through which we repeatedly drink the nectarian intoxicating beverage of the honey of your lotus feet. बोले हालांकि ये ब्रजवासियों का जो सौभाग्य है ये अचिंत्य है, लेकिन हम भी इनके बहाने हमारा भी उद्धार हो गया। हम जो 11 मुख्य विग्रह हैं अलग अलग इंद्रियों के, शिव जी हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब इन ब्रजवासियों ने, वृंदावन के भक्तों ने अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भगवान के रस का आस्वादन किया, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हम हैं तो हमें भी रस का आस्वादन हुआ। जो हमारी अलग इंद्रियां हैं उन सबके नियंता अलग अलग देवतागण हैं, लेकिन जो ब्रजवासी हैं उनका काया तो सच्चिदानंद है, वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके इंद्रियों के जो कंट्रोलर ये देवता थोड़ी होंगे। तो सनातन गोस्वामी बात बता रहे हैं कि जो देवता हैं भौतिक जगत में, इनके काउंटर पार्ट्स हैं वैकुंठ में, है ना। तो 11 देवता कौन है? प्रिजाइडिंग डिटीज, अहंकार है, ईगो है, इंटेलिजेंस, माइंड, 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ और पैर। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, मन और हाथ और पैर, ये 11 इनके हम जो प्रिजाइडिंग डिटीज हैं। उन्होंने नीचे मल मूत्र द्वार को नहीं लिया, बोलो ये डायरेक्टली भगवान की सेवा में नहीं लगाए। तो ये 11 की ज़्यादा प्रिजाइडिंग डिटीज हैं। हम कप की तरह थे और हमने भी भगवान के इस अमृत का पान किया। और क्या है वो? जो वैकुंठ के देवता हैं वो जब भगवान अवतरित हुए तो वो भी अवतरित हुए, और फिर उन्होंने ब्रजवासी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो साधारण भौतिक जगत के लोग हैं, उनकी इंद्रियां भी देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं, लेकिन वो देवता कौन है? वैकुंठ के देवता हैं। तो वैकुंठ के देवता गणों का भी धन्य हो गए वो ब्रजवासियों की कृपा से, कोई ब्रजवासियों के द्वारा उनको भी कृष्ण के सुंदर रस का आस्वादन करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर पढ़िए प्लीज। तद्भूरि भाग्याम इह जन्म यद्रो कुले कात्मांघ्रिरजोभिषेकम यजीवितम निखिलम भगवान मुकुंदम त्वद्यापि यत्पद्रजश्रुतिमग्यमेव। My greatest possible good fortune would be to take any birth, whatever in this forest of Gokula, and have any head bathed by the dust of falling from the lotus feet of any of its residents. Their entire life and soul is the supreme personality of Godheads. Mukunda, the dust of whose lotus feet is still being searched for in the Vedic mantras. तो क्या है ब्रह्मा जी की प्रसिद्ध प्रार्थना है, मैं कुछ भी जन्म दे दो किसी भी योनि में, लेकिन गोकुल में दे दो, क्यों? इन ब्रजवासियों के चरणों की रज प्राप्त हो जाए। और उस चरणों की रज की क्या महिमा है कि वैदिक शास्त्र भी उस चरणों की रज को खोज रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो पहले जीव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, वो व्रज में एक घास का तिनका बनना चाह रहे हैं। वो जन्म किसी, ये नहीं बोले कि मथुरा शहर में जन्म दे दो, नहीं, और ये भी नहीं बोले किसी तपोवन में जन्म दे दो जिसमें बड़े बड़े ऋषि आते हैं, बोले नहीं, गोकुल में, गोकुल के किसी जंगल में जन्म दे दो, ताकि इन गोकुल वासियों के चरणों की रज मिले। तो सनातन गोस्वामी पाल लिख रहे हैं इसकी टीका में, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर ही रहे थे तो घास के तिनके बनने की क्यों प्रार्थना कर रहे थे? ग्वाल बाल की बनने की प्रार्थना कर लेते, अच्छा मौका था, भगवान सामने है, बोले थे मैं ग्वाल बाल बना दो आपके साथ में खेलूंगा कूदूंगा, बोले नहीं, ये नहीं, क्योंकि जो मेरे सीनियर हैं वैदिक शास्त्र वो मुझसे पहले आए हुए हैं, वैदिक शास्त्र में भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं। वो वैदिक शास्त्रों को चरणों की रज नहीं मिली तो मैं क्या हूँ? मैं बोलूँगा ग्वाल बाल बन जाऊँ तो बाद में लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा होगा जैसे कोई बहुत ही गरीब सा व्यक्ति है बोले मैं राजा बन जाऊँ, ऐसे कैसे है? तो मेरी औकात ही यही है, मैं तो यही बोलूँगा, बस इतना बोल रहा हूँ। ये भी मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे से वरिष्ठ हैं वैदिक शास्त्र, उनको चरणों की रजी मालूम नहीं पता चल रही है, अभी वो उसको ढूंढ रहे हैं, तो मैं इतना ही मांग सकता हूँ कि उनके चरणों की रज मेरे सर पे आ जाए, है ना। बहुत सुंदर इस तरह से गुणगान है, और सारा गुणगान करके बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। फिर मथुरा की स्त्रियों की एक प्रार्थना आती है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सूतपदाम्बुजाम लक्ष्मीम गोविंद वेणु मनुमतं योर नित्यं प्रेक्ष्य दृशावरतान्यस्मरत् तत्सत्वम्। O friend, Vrindavan is spreading the glories of the earth
having obtained the treasure of the lotus feet of Krishna, the son of Devaki, the peacock dance madly when they hear the Govinda's flute, and upon seeing them from the hilltops, other creatures all become stunned. तो बता रहे हैं कि जो वृंदावन है पूरे पृथ्वी का आभूषण है, पृथ्वी की महिमा को बढ़ा रहा है। क्यों? कि इसका जो धन है वो भगवान के चरण कमल है। भगवान के कई अवतार हुए कई लोकों में, लेकिन सभी अवतारों में भगवान ने अपनी महिमा दिखाई है, तो अपना ऐश्वर्य दिखाया। तो कहीं भी भगवान नंगे पैर नहीं घूमे। स्वर्ग में ही भगवान का अवतार हुआ तो भगवान नंगे पैर नहीं घूमे, तो स्वर्ग में भगवान के चरण चिन्ह के निशान नहीं है, चरण चिन्ह नहीं है। केवल पृथ्वी पर ही भगवान परम पुरुषोत्तम होते हुए भी नंगे पैर घूमे और इस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाया अपने चरण कमलों से। तो ये वृंदावन की खूबी है। okay? यो दोहने आहवने मथनोपलेप प्रेंको कनार्भोरुदिदोक्षण मार्जनादो गायन्ति चेना मुनुरग्धियो विश्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिया उरुक्रम चेतयाना। The ladies of the Vraja are the most fortunate of women. Their minds fully attached to Krishna, their throats always choked with tears. They constantly sing about him while milking the cows, winnowing grains, churning butter, gathering cow dung for fuels, riding on swings, caring for their crying babies, sprinkling the ground with water, cleaning their house, and so on. Their minds are fixed in Krishna alone. तो ये गोपियों का गुणगान है कि वो कितनी सौभाग्यशाली हैं कि उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में आसक्त है और उनका जो कंठ है हमेशा रुद्र होते हुए भी भगवान का नित्य हमेशा गुणगान करते रहते हैं। जो भी वो काम कर रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, गायों के लिए अपना गोबर इकट्ठी कर रही हैं, झूले पर झूल रही हैं, घर में पानी छिड़क रही हैं, घर को साफ कर रही हैं, बिल्कुल कृष्ण पे मन है। ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण के नाम का संकीर्तन कृष्ण की सेवा करते हुए कर रहे हैं, हार बना रहे हैं कृष्ण के लिए तो गुणगान कर रहे हैं, हर कार्य करते हुए कृष्ण का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो गोपियां बहुत कुछ हमें सिखा रही हैं यहाँ पे। ये नाम संकीर्तन ही इस कलयुग की विधि है और इस नाम संकीर्तन के माध्यम से ही, अगर आपको ध्यान होगा पहले भाग के अंत में परीक्षित महाराज ने उत्तरा माता को यही आदेश दिया था कि आप भी भगवान की सबसे बड़ी ज़्यादा कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हो, उस गोपीनाथ को के चरणों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और उस गोपीनाथ के चरणों की कैसे पूजा करो, जैसे कि गोपियाँ करती हैं। कैसे गोपियाँ करती हैं? नाम संकीर्तन के माध्यम से। और यही हमारा आंदोलन है, नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हमेशा करते रहो। जो भी कार्य, प्रभुपाद जी ने 16 माला कम से कम बोला है। क्यों? उस समय प्रभुपाद जी ने इतनी सेवाएं दी थी। आपको मालूम होगा शायद जब इस आंदोलन के आरंभ में भक्त लोग 16 माला मंगल आरती से पहले कर लेते थे और जो मंगल आरती से पहले 16 माला नहीं करता था उसको बोलते हैं माया में है व्यक्ति, क्योंकि 4:30 के बाद मंगल आरती के बाद सेवाएं शुरू हो जाती थी। कोई पुजारी की सेवा, कोई कुकिंग की सेवा, कोई मार्केट में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, फिर संकीर्तन, फिर शाम को आना, खत्म। बस और टाइम ही नहीं था पूरे दिन में, इसीलिए 16 माला बोला गया। तो हम लोगों ने क्या किया, वो सब चीज़ें तो कम कर दी और इसको मैक्सिमम रखा। 16 माला ये मैक्सिमम लिमिट है। इस केवल इससे काम नहीं चलेगा। गोपियाँ हमें सिखा रही हैं 16 माला तो करनी ही करनी है ध्यानपूर्वक, उसके अलावा कुछ भी करें हम नाम जरूर लेते रहें, मैक्सिमम नाम है। प्रभुपाद एक बारी, मैं कल पीछे अमरिंदर प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बहुत अच्छा एनेक्डोट बता रहे थे कि पाश्चात्य देशों में एक मंदिर खोला, वहाँ पे एक दक्षिण भारत के कुछ लोग आए और प्रभुपाद ने पूछा कि मंदिर कैसा लगा। बोला मंदिर अच्छा है लेकिन घंटी नहीं है इसमें। दक्षिण भारत में हर मंदिर में घंटी होती है, घंटी नहीं है। प्रभुपाद बोला नहीं, यहाँ पे घंटी हमने सबको दे रखी है ना, इंटरनल घंटी है, ये जीव घंटी है जो हमेशा बजती रहती है, हरे कृष्णा दिस टंग शुड, दिस बेल शुड ऑलवेज बी रिंगिंग। तो जितना हम नाम लेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। पता नहीं कितने जन्मों के पाप इकट्ठे हुए हुए हैं। हम 16 माला जब करते हैं वो भी हमें मालूम है कितना संघर्ष करते हुए करते हैं और हम सोच रहे हैं क्या कि
ठीक है, नाम की बहुत महिमा है, प्रणाम देखा है, लेकिन अगर गोलोक धाम जाना है इसी जीवन में तो खूब नाम लेना पड़ेगा, खूब नाम, पीछे पड़ जाना नाम के, है ना, कि यही एकमात्र तरीका है। वो दिखा रहे कुछ भी काम कर रही हैं वो नाम ले रहे हैं। हमारे भक्तों फिर इससे क्या इंस्पिरेशन लेती हैं, काम करते हुए 16 माला जप करेंगे। मल्टीटास्किंग नहीं, वो 16 माला एक्सक्लूसिव होने चाहिए, बाद में फिर, है ना, जैसे भक्ति विनोद प्रभु कहते हैं ना, सोते सोते नाम ले सकते हैं लेकिन नाम लेते लेते सोना नहीं। सोते सोते नाम ले लेंगे, हम नाम लेते लेते सोते हैं। तो नाम लें, 16 माला का जप करें और खूब अच्छे ढंग से, जितना नाम लेंगे उतना जल्दी शुद्धिकरण होंगे। गोपियां इतनी उन्नत अवस्था में वो हमें सिखा रही हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद टीका में लिख रहे हैं, फिर वो घर का काम करती क्यों थी जब मन इतना आसक्त था उनका, क्यों घर का काम करती थी? स्त्रियों को तो वैसे ही घर का काम करना अच्छा लगता है, तो वही बात हो गई, इन कंडीशनिंग थी उनकी। फिर बोले नहीं, वो जो घर का काम भी कर रही थी, आंखों में उनके आंसू थे, गला रुद्रुत था, कृष्ण का स्मरण हो रहा था, वो हर काम को सोच रही थी ये कृष्ण के लिए। तो हमें कोई भी सेवा मिलते हैं, हमें सेवा अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, हमारी पसंद क्या है, नहीं, ये कृष्ण के लिए है। और उसको कैसे कृष्ण के लिए बना सकते हैं? कृष्ण का नाम लेके। तो फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर वो कृष्ण का नाम लेते हुए सेवा करनी तो बड़ी डिस्ट्रैक्टेड होती होंगी, फिर तो ध्यान पूर्वक कहाँ सेवा कर पाती होंगी, उल्टा सीधा काम होता होगा। बोले नहीं, क्योंकि कृष्ण के लिए सेवा हो रही थी, तो भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना प्योर है कि काम भी एकदम परफेक्ट होता था, है ना। तो कई भक्त इसका भी फायदा उठाते हैं, मैं तो कृष्णा कॉन्शियस काम ढीले ढाले ढंग से करूंगा, कुछ भी कर दूंगा, नहीं, परफेक्ट काम होता था। और बोले फिर गोपियां फिर क्या, कैसे भगवान का दर्शन कैसे करती थी? कहते नाम में इतनी शक्ति है, वो नाम लेती रहती थी, नाम से ही भगवान का रूप उनके सामने प्रकट हो जाता है, लीलाएं प्रकट हो जाती थी, इतनी शक्ति है नाम संकीर्तन। तो ये गोपियां हमें सिखा रही हैं। इसके अलावा और भी 1-2 श्लोक हैं, जल्दी से इसको करके फिर भगवान बता रहे हैं, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, ना पारे हम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधौ याशिपव यामाज संवृश्य तद्वा प्रतियातु साधुना। I'm not able to repay my debt for your spotless service. Even within a lifetime of Brahma, your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties which are difficult to break. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. भगवान कह रहे हैं कि मैंने गीता में वचन दिया था, ये तमाम प्रपद्यन्ते, क्षमा करें, मैं उस वचन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। आपने जो मेरे लिए त्याग किया मैं नहीं कर सका, आपके लिए तो मैं एक्सक्लूसिव व्यक्ति, आप सब कुछ मैं ही था, लेकिन मेरे बहुत डिस्ट्रैक्शन थे, मुझे गायें चराने जाना पड़ता था, मैं नंद और यशोदा को भी प्रेम देना है, मेरा प्रेम तो बटा हुआ था, आपका प्रेम केवल मेरे लिए था, तो मैं आपको रिपे नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा जी का जीवन भी लग जाए मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता। तो फिर कैसे करेंगे आप वापस? आपके अच्छे कार्य से ही आप संतुष्ट हो जाइए, है ना। तो भगवान यहाँ पे हाथ खड़े कर रहे हैं। तो पूरा ये सारे श्लोक सुनाने के बाद जन्मजय जी बताते हैं, कृतार्थोस्मि निश्चितो भगवान गुरो गोयम गोलोक महात्मयम यदहम सेवितस्त्वया। Sri Janmajay said, I am all successful, for you, O Lord, O spiritual master, have given me the opportunity to relish the secret glories of Goloka. तो यही भाव आना चाहिए हमारे में कि हमारा जीवन सफल हो गया, कि गोलोक की महिमा हमें मालूम चल गई। हम इस्कॉन में तो इतने सौभाग्यशाली हैं, पहले दिन से मालूम चल जाता है गोलोक क्या है ना, पहले दिन से भगवत धाम जाना है वापस, कृष्ण का धाम है, गोलोक धाम है, किसको पता होता है बाहर, है ना। और कितना रिसर्च करने के बाद गोप कुमार को मालूम चला गोलोक धाम में जाना है, कहाँ कहाँ से गुजर के, और हमें चैतन्य महाप्रभु कृपा से तुरंत मालूम है कि गोलोक धाम में जाना है ना। तो बोला मेरा जीवन अब सफल हो गया, ये वास्तव में सारी जो रिसर्च है ये अल्टीमेट कि यस गोलोक धाम जीवन में जाने का लक्ष्य है, उसकी महिमा मुझे मालूम चल गई। तो जयमिनी जी क्या बता रहे हैं, अंतिम के 3 श्लोक हैं बस। तत्ताथ तत्स्व सत्यम यद् भक्त्या श्रवणादिपि कीर्तनात् अस्याख्यानस्य वध्याध्यानात् तत्पदम लभते नरः। She Jaimini said, My dear boy, what you say is true.
Anyone who hears or chants or meditates upon his narrative with devotion will achieve the award of Supreme. तो जैमिनी जी ने जन्मजय के इस रिस्पॉन्स को देख के बड़े खुश हुए और प्रेम से बोला तात, है ना, कि मेरे प्रिय पुत्र, है ना, कि आपको मैंने जो बताया उसको आपने सब समझ गए और आप जान रहे हो कि आपका जीवन सफल हो गया गोलोक की महिमा जान के, तो बड़े वो प्रसन्न हो गए, है ना। और ये अंतिम में श्लोक बोलते हैं, तस्मै नमस्तो निरुपाधि कृपा कुलाया श्री गोपराजा तनयाय गुरु तमाया या कार्य निज जनम स्वामेव भक्तिम तस्याति तुष्यति यथा परमोपकर्तु. Obeisances to him, the son of the blessed king of the cowherds, who is always austere with causeless compassion, who on his own initiative impels his servant to develop devotion for him, and who then becomes fully satisfied as if his devotee were being very kind to him. तो कितना सुंदर गुण बताया जा रहे हैं भगवान का, कि बता रहे हैं कि उनको नमस्कार हो जो कि निरुपाधि, जिसमें बिना किसी कारण के वो कृपा से आकुल हैं. कृपा करने के लिए भगवान आकुल है, मैं कृपा करूं, है ना. और क्या कर रहे हैं, श्री गोप राज तनयाय गुरु उत्तमाय, वो सबसे हमारे मुख्य गुरु हैं और कृपा करने के लिए आकुल हैं. तो फिर क्या कर रहे हैं कि खुद वो इनिशिएटिव लेते हैं और बिना कोई योग्यता देखे किसी को उसको भक्ति देने का उसको प्रदान करते हैं, ना. और क्या कर रहे हैं, जिससे कि जब वो भक्ति करते हैं फिर बड़े संतुष्ट महसूस करते हैं कि जैसे वो उनकी भक्ति पर निर्भर हो. पूर्ण रूप से आत्माराम है, लेकिन उनको प्रणाम कर रहे हैं उस गोप राज तन्या को जो कि हमेशा आकुल हैं अपनी करुणा दिखाने के लिए और अपना इनिशिएटिव लेते हैं अपने सेवक में उनको भक्ति विकसित करने के लिए और पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार से भक्तों ने बड़ी कृपा कर दी उनके ऊपर भक्ति करके. तो ये बता रहे हैं जैमिनी जी कि भगवान की इच्छा थी, भगवान ने मुझे प्रेरित किया, कैसे मैं ये सब कथा बोल पाया, उन्हें कि खुद कृपा करके ऐसा किया. और फिर सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इसका मैं संकलन कर पाया. तो इस प्रकार से ये पूरा जगदानंद ये अंतिम अध्याय समाप्त हुआ और गोपी प्रियानंदन प्रभु ने इसको कंप्लीट किया था जगन्नाथपुरी धाम में 30 जून 1999 को स्नान यात्रा के दिन ये कंप्लीट किया था. ठीक है, हरे कृष्णा. आप सब भक्तों में बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य बना के सुना. और मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ भक्त या ऑनलाइन में से कोई भक्त, दो भक्त क्या सुन के लगा आपको गोकुमार की कथा, क्योंकि इस भैरव भागवतामृत में भगवान भक्त और भक्ति के चरित्र का गुणगान है और बहुत गोपनीय बातें थी. मैं पूर्ण रूप से इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, जितना साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट पढ़ के सुनाया, अनुवाद किया मैंने. लेकिन फिर भी क्या चीज़, क्या हमारी प्रशंसा बढ़ी, किस चीज़ के लिए, क्या सीखने को मिला. यानी 2 devotees कैन शेयर. हरे कृष्ण. प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद. इस बृहद भागवतम को आपने सुनाए. ये करीब काफ़ी वर्षों से ऐसे मन में इच्छा हो रही थी कि इस ग्रंथ को भी सुना जाए, लेकिन कहीं पे अवसर नहीं मिल रहा था. और मैं कई बार प्रवचन भी ढूंढा तो मुझे कुछ विशेष रूप से मिला भी नहीं. कुछ चीज़ें मिली थी, बाकी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी. लेकिन ये जो है सनातन गोस्वामी जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और कि ये जो भगवान ने इच्छा पूरा किया कि बृहद भागवतम हम सुने और बहुत ही संतुष्टि अनुभव हुआ. इन कथाओं को जैसे कि पहले खंड में आपने सुना नारद जी का जब भ्रमण हो के शुद्ध भक्तों की खोज कर रहे थे, श्रेष्ठ भक्तों की खोज कर रहे थे,
तो इसमें से मिल रहा था कि एक भक्त दूसरे भक्त का कितना गुणगान कर रहे हैं। ये हमारा पूर्व इतिहास अगर ऐसे कर रहा है तो इससे प्रेरणा मिलती है कि इससे प्रेरणा मुझे खुद मिल रहा था कि हमारा जीवन का जो यही ऐसे ही उद्देश्य होना चाहिए, हनुमान जी की तरह, प्रहलाद महाराज की तरह, कि हम और भक्तों का गुणगान करते रहें। और उसके उपरांत दूसरा, जब आपने इस बृहद भागवतम को लेने का आपने जो निर्णय, हम सबका श्रद्धा थी सुनने को, लेकिन आपने जिम्मेदारी लिए और इसको सुनाए और फिर हमें भी बहुत खुशी हुआ। तो दूसरा खंडों में जो आप सुना रहे थे कि गोप कुमार की कथा, ये किस प्रकार से उत्तरोत्तर भ्रमण कर रहे थे, तो हम हमेशा भागवतम सुन रहे थे, शास्त्र सुन रहे थे और भक्तों का प्रवचन आदि सुन रहे थे। तो इससे, इस ग्रंथ से काफ़ी सारे चीज़ें जो है साक्षात्कार का अनुभव हुआ। तो यही है कि मैं श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणा जी, गौर निताई जी, शिला प्रभुपाद, शिला सनातन गोस्वामी जी के, हमारे सारे गुरु परंपरा के चरणों में ये श्रद्धा समेत प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने हमें बृहद भागवतम सुनाए और भगवान जो है उन पे प्रसन्न हो और खूब अपना आशीर्वाद प्रदान करें, भगवान अपना प्रेम प्रदान करें हम जिनसे बृहद भागवतम सुने। और इसके साथ भगवान जो है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखें और भक्तों का हर्ष वर्धन करते रहें। जय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने आशीर्वाद दिया, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, यही आशीर्वाद चाहिए था। डीटीज का आशीर्वाद है प्रभु जी। थैंक यू, आपने दिया। थैंक यू। और कोई कहना चाहेगा कुछ आने वाला? रूप सनातन बाबू। थैंक यू वेरी मच। इसका नाम ही है बृहद भागवतामृत, तो इसको लेक्चर देने के लिए आपको बृहद एफर्ट्स करने पड़े होंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे प्रभुपा कहते हैं कि जितनी हमारी समस्याएं हैं, दे आर ऑल ड्यू टू पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ। तो इसको पढ़ के हमें अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसके बारे में पता लगता है। तो उसको जान के और डीप इंसाइट है गोलोक वृंदावन का, वो हमें बृहद भागवतम से पता लगता है। तो इसको जान के ऐसे कि जो भक्ति दीदा दोस्तों महाराज बोलते हैं कि अगर हमें भक्ति में उत्साहित होना है तो अपने लक्ष्य को हमेशा केंद्र में रखना चाहिए। तो ये लक्ष्य हमें इससे पता लगता है। थैंक यू सो मच। हरि बोल। तो ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है, इस गोलोक का महात्म्य सुन के और जिस प्रकार से गोप कुमार ने संघर्ष किया, तो हमारा कमिटमेंट और बढ़ जाना चाहिए। हमारे को, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। यहाँ बीच में वर्णन आता है, गोप कुमार बताते हैं ये जो प्रेम है, या तो राधा रानी बताएंगी प्रेम क्या होता है, या एक विशेष अवतार आएगा वो बताएंगे। तो विशेष अवतार थे चैतन्य महाप्रभु, बताए कि प्रेम क्या है और बड़े आसानी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। रम्या को आचित उपासना व्रजवधु वर्गेन व कल्पिता, कैसे व्रजवधुओं के पद चिन्हों पर चलते हुए, कैसे नाम संकीर्तन करते हुए, तो हम भी इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ईजिली हमें मिल गया, तो कई बार हम इतना ईजी चीज़ मिल जाती है उसकी कदर नहीं करते। तो प्रभु कहते कृष्णा कॉन्शियस इज सो सिंपल दैट समटाइम्स वी मे मिस इट। तो हमें इतनी आसानी से प्राप्त हो गया, लेकिन गोकुमार जी को इतना संघर्ष करना पड़ा। तो एक प्रमाणिक गुरु परंपरा हमारे पास है, चैतन्य महाप्रभु कृपा हमारे पास है। बस कमी है कि हमने अपनी इच्छा को दृढ़ करना है और इसी जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान कितने ईगर हैं, भगवान कितने उत्सुक हैं हम सब के लिए। दिखाया जन शर्मा के लिए भी, स्वरूप के लिए कैसे बोल रहे थे भगवान। तो वास्तव में भगवान का चरित्र दिखने को मिला। भक्ति क्या होती है ये ब्रजवासियों की भक्ति मालूम चले। और गोप कुमार कितने सरल रहे, हर परिस्थिति में गुरु के द्वारा हुए मंत्र को उन्होंने खूब अच्छे ढंग से उच्चारण किया। तब जब भी थोड़े से विचलित होते थे, जब कोई साधक बहुत सिंसियर है तो भगवान किसी ना किसी को भेज देते थे, या खुद आते थे या नारद मुनि को भेज देते थे, या गुरु आते थे उनकी रक्षा करने के लिए, उनका आगे मार्गदर्शन करने के लिए। तो हमें भी बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए। हमें लग सकता है कि हमारे भक्ति के जीवन में बहुत बाधाएं आ रही हैं, लेकिन हम सिंसियरली अगर प्रयास करते रहेंगे निश्चित रूप से सभी बाधाओं को पार कर पाएंगे। भगवान किसी न किसी को जरूर भेजते हैं, हम सबका भी साक्षात्कार होगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हाँ पहले पूछ लेते हैं फिर से। हाँ तो जी एक प्रश्न है गगन भास्कर जी का कि हमने नाम संकीर्तन के इतने बारे में सुना है इस ग्रंथ में, बट हम देखते हैं कि बहुत कम अवसर मिलते हैं कि वास्तव में जाके गली में संकीर्तन करने के, स्ट्रीट संकीर्तन करने। तो व्यक्तिगत स्तर पर हम किस प्रकार से नाम संकीर्तन को एम्फसाइज कर सकते हैं अपने खुद के जीवन में? अच्छी बात बोली आपने कि जो पहले इस आंदोलन के आरंभ में नाम संकीर्तन हो रहा था उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, अब तो लॉकआउट हो गया और कम हो गया। तो हम घर में बैठ के ज़रूर करें, आसपास पड़ोसियों को एंगेज कर सकते हैं। और जैसे गोपियाँ सिखा रही हैं, घर का जो भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में जो भी आप काम कर रहे हैं, आप नाम ले सकते हैं, इसकी आर डाल सकते हैं। हर 15 मिनट के बाद आप कुछ मंत्र बोलिए, है ना। अमरिंदर प्रभु बता रहे थे, आइडिया अच्छा दे रहे थे कि दिन में 10 घंटे आप काम के लिए जा रहे हैं तो हर शुरुआत ऐसा करें कि हर 15 मिनट बाद रुके हरे कृष्ण महामंत्र बोल दें एक बारी, फिर आगे काम करते रहे। तो कितनी बारी हम भगवान को याद कर लेंगे। फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी, 15 मिनट से 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट से 1 मिनट हो जाएगा, तो कीर्तनीय सदा हरि, तो इसकी आदत डालनी है ना। तो निश्चित रूप से इसको प्रचार करने के लिए हमें सड़कों पे, गलियों में भी आना चाहिए। और अगर वो अभी नहीं कर पा रहे हैं इस परिस्थिति में, तो अपने जीवन में उतारें, जहाँ से नाम लें। जिन भक्त लोगों के साथ आप रह रहे हैं उनको हम प्रेरित करें अपने उदाहरण से, अपने उत्साह से। ये प्रश्न पूछा है संजय त्यागी प्रभु ने कि वो धन्यवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ब्रिजवासी जो है परम भक्त हैं भगवान कृष्ण के, परंतु हम फिर भी देखते हैं कि जो इस्कॉन भक्त उनको प्रचार कर रहे होते हैं। तो इस बात को कैसे समझे? इस्कॉन के डिवोटीज ब्रजवासियों को जो प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी ने भी किया। प्रभुपाद जी भी जब आए थे, और प्रभुपाद जी एक कंपैशन था प्रभुपाद जी का, और बता रहे थे कि आपको इतना बड़ा भगवान की कृपा प्राप्त हुई है और आप इतने विशेष जीव हैं, तो आप पाश्चात्य देशों के प्रभाव में आके मटेरियलिज्म को मत अपनाइए और अपनी संस्कृति बनाए रखिए, और आपकी संस्कृति को मैं विदेशों में ले जा रहा हूँ। तो ये किया जाता है, लेकिन एक साधारण भक्त को ब्रजवासियों के साथ बहुत केयरफुली व्यवहार करना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक। प्रश्न उत्तम लीला माता जी का कि जीवात्मा को कैसे पता चलता है कि वह गोलोक जा रहा है? क्या ये सब कृष्ण की प्रेजेंस में होता है? यहाँ पे तो हुआ, स्वरूप को तो भगवान स्वयं लेके आए थे नीचे और लेकर गए ऊपर स्वयं, और ये तो तभी वहाँ जाके मालूम चलेगा। और जीवात्मा को मालूम चल जाएगा कि जैसे जा रहा है। जैसे गोप कुमार का अनुभव था, उनको मालूम चला कि वो यमुना में मूर्छित हो गए थे, फिर देखा कि यमुना से उनको सीधा उठा के लिया जा रहा है, भगवान लेके गए थे स्वयं। कृष्ण मुरारी प्रभु पूछ रहे हैं कि इट इज मेंशन्ड दैट कृष्णा's footprints are there only in Golok. However, Kunti Maharani mentions that her kingdom Hastinapur was marked by impressions of Krishna's lotus feet. How do we understand it? पृथ्वी की बात कर रहे थे वो, पृथ्वी का आभूषण है जो है कि पूरी पृथ्वी पर जो है आपके उसमें भगवान के चरण हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सर्वकांति प्रभु साहिबाबाद से कि पूछ रहे हैं आपने बताया भौतिक ब्रह्मांड, फिर ब्रह्म ज्योति, फिर वैकुंठ, इसमें शिव धाम कहाँ है और क्षीर सागर कहाँ स्थित है? तो ब्रह्म ज्योति के बाद शिव जी का लोक आता है, शिव जी के लोक के बाद वैकुंठ आता है, फिर वैकुंठ के बाद गोलोक आता है। जो एक श्लोक बोला था हरिवंश से, उसमें ये बोला था कि शिव जी और उमा जी भी वैकुंठ की आशा रख रहे हैं, लेकिन शिव जी का लोक ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ के बीच में स्थित है। क्षीर सागर जो है इसी भौतिक जगत में है, और उसका हमने कल रिसर्च किया था, लघु भागवतामृत में उसका वर्णन आता है। तो मेरू पर्वत के पूर्वी दिशा में कुछ है, और मेरू पर्वत कहाँ है? इस जम्मू द्वीप में, लेकिन यहीं पे इस भौतिक जगत में कहीं पे क्षीर सागर है। सीता रानी माता जी का प्रश्न है
ईस्ट ऑफ कैलाश, कि प्रभु जी इसका फलश्रुति भी वर्णन कीजिए। फलश्रुति सुनाया था, नहीं सुना था? हाँ क्षमा, फलश्रुति था इसका, स्किप हो गया मुझसे, सॉरी। हाँ, फलश्रुति ये है, My dear boy, what you say is true. Anyone who hears or chants or meditates upon this narrative with devotion will achieve the abode of the Supreme. कोई भी इसको सुनेगा, इसको गाएगा, इस पे मनन करेगा बड़ी भक्ति के साथ, तो उसको भगवान का ये धाम प्राप्त हो जाएगा, गोलोक धाम। बाकी बहुत सारे भक्तों का आभार प्रकट कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से अपनी टीचिंग्स लिख रहे हैं कि क्या है। एक आखिरी प्रश्न है कृष्ण मुरारी प्रभु का ही, कि is it ever possible for a devotee to upgrade inherent rasa progressively from shant to dasya to sakhya to vatsalya to madhurya, or directly from 1 to 5 directly, or he remains always in one particular rasa? वो निर्भर करेगा प्रभु जी। अगर समझ लें हम माधुर्य रस में स्थित हैं तो हो सकता है प्रोग्रेशन हो, हम उसमें संतुष्टि नहीं होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारा स्वरूप समझ लीजिए साख्य रस में ही है, तो शांत दास्य और साख्य में आके फिर हम वहाँ पे आके संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ हरे कृष्ण जी, एक जस्ट क्वेरी थी कि जैसे हम इसमें देखते हैं कि गोप कुमार की जर्नी देखते हैं, तो एक डाउट था कि मतलब जैसे हमने लिटरेचर्स में पढ़ा भी है कि गौड़ीय वैष्णव में कि भगवान के गोलोक धाम में वो जा सकते हैं जिनको दास्य साख्य या माधुर्य रूप में जो भक्ति करते हैं, विकसित करते हैं साधना को। शांत और दास्य रस जो के भक्त जो हैं वो नहीं जाते गोलोक। दूसरा कि गोलोक में शांत दास्य पांचों रसों को में भक्त को स्थिति को देखा जाता है, जैसे आपने बताया था कि अभी भी बताया कि वहाँ पे कई भक्त जो है शांत में, तो ये शांत और यहाँ से वहाँ शांत में क्या डिफरेंस है? मतलब जैसे यहाँ की साधना और वहाँ पे शांत पे होना। हाँ, वहाँ का जो गोलोक का शांत है उसमें बहुत माधुर्य है। अब वहाँ पे जैसे पेड़ हैं वो शांत रस में लिया गया है, लेकिन वो भी आंसू बहाते हैं ना, वो भी आंसू बहाते हैं, उनमें माधुर्य है। वृंदावन पूरा माधुर्य से ओतप्रोत है ना? और ऐसा नहीं कि वहाँ पे दास्य नहीं है वहाँ पे दास्य भी है। और चैतन्य महाप्रभु 4 भाव में भक्ति देने आए हैं, है ना, दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव में। तो आपका प्रश्न क्या है? कि जस्ट क्लैरिफाई करना चाहते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे कोई साधक जो है दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव में भक्ति करता है, देन ही कैन गो टू गोलोका। हाँ, बट वहाँ पे भी हम देखते कि कई भक्त जो है वहाँ पे भी बताते शांत स्तर में है, कोई जो है दास्य स्तर पे है, कोई वात्सल्य साख्य माधुर्य पे है, तो वहाँ के और यहाँ पे मतलब सेम। आप जब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम राघव का साधना करते हैं और भाव की स्थिति में आते हैं, तो हम अपने स्वरूप का आभास हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो जिस भाव में हम स्थित हैं वही भाव हम अपना स्वरूप प्राप्त करेंगे। जिसकी प्रैक्टिस करेंगे वही हमारा स्वरूप होगा, और फिर वही हम भगवान के धाम में उसी लीला में प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी जगह चेंज हो जाएगा। नहीं, जस्ट क्वेश्चन यही था कि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साख्य वात्सल्य और माधुर्य। नहीं, आप कह रहे हैं कि फिर दास्य की प्रैक्टिस करता नहीं तो वहाँ दास्य कैसे हो गया, आप ये प्रश्न। हाँ, नहीं होंगे कुछ भक्त ऐसे, ऐसा नहीं नहीं होंगे। जब चैतन्य महाप्रभु करे मैं 4 भाव देने आया तो उसमें दास्य भी है। हाँ, दास्य भाव भी है वहाँ पे। और कुछ आचार्यगण बोलते हैं कि जो गायें हैं और पेड़ हैं उनको दास्य रस में लिया गया, शांत है ही नहीं वहाँ पे। और कुछ बोलते हैं नहीं पेड़ शांत रस में है, तो लेकिन वहाँ का जो शांत रस भी है वो वैकुंठ वाला शांत रस नहीं है, उसमें माधुर्य एक्सप्रेस बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। वो जो पेड़ भी रो रहे हैं वो पेड़ सूखे पड़ जाते हैं, पत्तियाँ गिर जाती हैं उनकी, तो वो भी अपना कुछ माधुर्य दिखाते हैं। तो जैसे अपने
तो ये स्वरूप की बात है, जिसको जो आभास होगा, जो स्वरूप का ज्ञान होगा, वो उसी में स्थित होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके बदल जाएगा। दूसरा ये था जैसे हम इस लीला को सुनते हैं तो दूसरा एक ये आता है कि मतलब जैसे कृष्ण गोलोक में जाने के लिए ओनली जैसे राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई थी उनको, तो ओनली थ्रू राधा रानी और लाइक बलराम इज टेकिंग द कंडीशनल सोल्स देयर कि जस्ट बाय कृष्णा, और हम देखते नहीं कि सीधी कृष्ण की कोई कृपा प्राप्त कर रहा है, जस्ट आइदर या तो राधा रानी किसी को वो करते हैं या बलराम जी किसी को भेजते हैं कि उनको लेके आइए। सही बात है। इससे जैसे कामाख्या देवी की, क्योंकि मैं मेरी एक ऐसी थी कि कामाख्या देवी की हम देवी जैसे देवी बोलते हैं तो सुप्रीम देवी इज राधा रानी, तो समहाउ अदर की कामाख्या देवी की इसके थ्रू राधा रानी ने रेसिप्रोकेट किया वहाँ पे, वो उनकी एक्सपेंशन ही है और उन्हीं का थ्रू उनको किया। यस, थैंक यू। जय बृहद भागवतामृत की, अनंत कोटि वैष्णव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।